Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to start unit 2, that is the story of Saira. I have divided this unit into different lectures. In lecture 1, under the title of grammar, we will learn about plural naming words, page number 18 of your book. And we'll cover the SLO to identify and change the number of simple naming words by adding or removing S and ES. In lecture 2, again under the title of grammar, we will learn about masculine and feminine, page number 18, and we'll cover the SLO to identify gender of naming words from immediate environment, masculine and feminine. Lecture 3, under the pronunciation skills, we will learn about initial sound of words, page number 16 of your book, and we'll cover the SLO to pronounce and match the initial and final sound of common words depicted in pictures with their corresponding letters. Lecture 4, again under pronunciation skills, we'll learn about final sound of words, page number 17, and we'll cover the same SLO, pronounce and match the initial and the final sound of common words depicted in pictures with their corresponding letters. Lecture 5, we'll read and understand the story, page number 13, 14 and 15, and we'll cover the SLOs to listen to a story or fairy tale of a few sentences read aloud by the teacher, read aloud the same story, fairy tale by themselves, and arrange a list of words in an alphabetical order. Lecture 6, we'll continue reading and understanding the story. Again, page number 13, 14, 15, we'll cover the same SLO, listen to a story or fairy tale of a few sentences read aloud by the teacher, and read aloud the same story or fairy tale by themselves. Lecture 7, under listening and speaking title, we'll learn to introduce yourself, page number 19, and we'll cover the SLO to articulate and recognize, use some formulaic expressions to introduce self and talk about family. In lecture 7, under the title of writing, we'll write simple sentences and numbers 1 till 50, page 19 of your book, and we'll cover the SLO to trace and write simple one-syllable words with correct spellings, leave regular spaces between words, and we'll write numbers from 1 till 50 in words. So my dear students, it's the time to understand this story. To understand this story, theme is given there and a sub-theme is there. And what is the theme? Gender equality and equity, and little boys and girls are equal. Yes, my dear students, beta यहाँ मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ. यहाँ लिखा है लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल. इक्वल डज नॉट मीन सेम, दे आर इक्वल. अल्लाह ताला ने लड़कों को और लड़कियों को डिफरेंट बनाया है. जब इक्वल की बात आती है, इट डजंट मीन दे आर सेम. इसकी मिसाल ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेब लेती हूँ और एक अमरूद लेती हूँ, नाउ दे आर इक्वल इन नंबर, 1 एप्पल एंड 1 गुआवा, बट दे आर नॉट सेम, राइट. लाइकवाइज जब हम इक्वल की बात करते हैं, अब इक्वल का फिर मतलब क्या है? अल्लाह इज टेलिंग अस इन कुरान, व्हाट इज इट इज, if any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter heaven, and not the least injustice will be done to them. Allah is dealing men and women equal. अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करते हैं, तो इनाम क्या है? जन्नत, हर मर्द और हर औरत के लिए. ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बेटा. अल्लाह ये नहीं कह रहे कि अगर आदमी अच्छा काम करेंगे तो उनको इनाम मिलेगा, औरतें अच्छा काम करेंगी तो उनको भी इनाम मिलेगा. और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब हम इक्वल बनने के लिए सेम बनना शुरू कर दें, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे सोसाइटी में मिलता है. जैसे गर्ल्स स्टार्ट वेयरिंग ड्रेसेस लाइक बॉयज़, ये कोई इक्वलिटी है?
तो बेवकूफ़ी है। जब एक लड़की है तो उसको लड़की दिखना चाहिए। इसी तरह फ्यू बॉयज़ दे स्टार्ट डूइंग मेकअप, के लड़कियां कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं बेटा, ये अक्लमंदी की बात। आप सोचें, अगर आपने लड़की की तरह दिखना है तो अल्लाह ताला ने आपको लड़का क्यों बनाया, फिर अल्लाह ताला आपको लड़की बना देते। इसी तरह लड़कियां ये सोचें कि अगर हमने लड़कों की तरह दिखना है तो वाई अल्लाह क्रिएटेड मी अ गर्ल। असल में बात यह है कि हमें अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर हर काम की परमिशन है। वो लिमिट्स क्योंकि हम जान पाते नहीं और जानना चाहते नहीं है तो वी स्टार्ट डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो बी वेरी केयरफुल। आप मेरे स्मार्ट बच्चे हैं, आप इस चीज़ को अभी से समझ लें। जैसे नमाज पढ़ना, अब लड़कों ने मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़नी है, ठीक है, ये एक जिम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लड़कियां घर में रहें और नमाज ना पढ़ें। नमाज का सवाल तो लड़कियों से भी होना है और लड़कों से भी। तो ये इक्वल का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को, जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, जो आपकी सोसाइटी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप उसको निभाएं और अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करें। डू यू अंडरस्टैंड? डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? वेरी गुड। आप इस बात को समझ रहे हैं ना बेटा। और इसी तरह जब रिवार्ड की बात आती है, दिस इज़ मैसेज फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर एक मेरा स्टूडेंट है, मैंने आपको काम दिया लिखने के लिए, अब एक बच्चा लिख के लाता है, जी मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इज़ इट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़? नो, इट्स जस्ट अ लेम एक्सक्यूज़। अ बॉय एंड अ गर्ल आर इक्वल। अल्लाह ने हाथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिए हैं, गर्ल्स को भी दिए, बॉयज़ को भी। सो यू हैव टू होल्ड द पेंसिल एंड राइट इन योर बेस्ट हैंड राइटिंग। इक्वल का ये मतलब है। अब मैं एक टीचर, मैं चेक करूँ, हाँ अच्छा ये तो लड़का है, इसकी हैंड राइटिंग ऐसी है, ये लड़की है। नहीं बेटा, मेरे लिए आप सब बराबर हैं। मैं क्या आपको पढ़ाते हुए कहती हूँ कि ये इस सवाल का जवाब तो सिर्फ लड़के ही दे सकते हैं, या इस सवाल का जवाब तो सिर्फ लड़कियों को पता है? नहीं बेटा, आप सब स्मार्ट हैं। अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया है, अल्लाह ने आपको एक बहुत आला तरीके से एक पोजीशन दी है, और वो हर एक की डिफरेंट है। आप तो देखें, साइंस भी ये बताती है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, है ना। तो अल्लाह ताला ने आपको जो आपकी सलाहियत दी है उसको पहचाने और उसको इम्प्लीमेंट करें। और उससे भी बड़ी बात यह है बेटा, जैसे अब मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए एक बॉय है या गर्ल है, ये ज़रूरी है कि मेरे बच्चे अच्छी बातें सीखें, मेरे बच्चे ओबीडियंट हों, मेरे बच्चे अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हों, मेरे बच्चों को ये पता हो कि जो अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह के अहकामात हैं, उनको पूरा करना हर एक के लिए लाजिम है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन आर इक्वल। और इसकी बहुत बड़ी जो इसका रिवॉर्ड है, इसका अजर है कि अल्लाह ने सवाब भी, लड़कियों को भी अच्छे काम का सवाब मिलना है, लड़कों को भी मिलना है। तो क्यों ना अच्छा काम करें। एवरीवन शुड डू इक्वल पार्ट, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक जैसे दिखना शुरू कर दें। डू यू अंडरस्टैंड? एम आई क्लियर? ये आप देखें एड्स या मीडिया या कार्टून और मूवीज़, नहीं बेटा, ये चीज़ें इफ़ दे आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज, व्हाई यू आर टेकिंग इट। आपको ये समझना है कि अल्लाह ताला ने मुझे जैसा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि यू आर द बेस्ट क्रिएटर। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मेरा बीइंग बेस्ट क्रिएटर काम क्या है कि मैं जो भी काम करूँ वो बेस्ट हो, जो अल्लाह ताला को पसंद आए, मेरे पेरेंट्स को पसंद आए, मेरी टीचर को पसंद आए। एंड व्हेन पीपल अराउंड यू आर हैप्पी विद यू, दे विल मेक दुआ टू अल्लाह कि या अल्लाह आप भी मेरे बच्चों से खुश हो जाएं, कितने मेहनती, कितने अच्छे बच्चे हैं, राइट। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द थीम। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ कि ये क्या है। इन अ ब्यूटिफुल स्मॉल वैली देयर लिव्ड अ स्मॉल फैमिली। एक खूबसूरत से शहर में छोटी एक फैमिली रहती थी, और वो बहुत उसमें 4 मेंबर्स थे, एक फादर, एक मदर, साद और सायरा। और साद और सायरा जो हैं वो ट्विन्स थे, वो जुड़वा बहन भाई थे। जुड़वा आपको पता है ना, 2 बहन भाई, 2 बहनें, 2 भाई जो जुड़वा होते हैं। तो साद और सायरा भी जुड़वा थे, यानी दे वर ऑफ इक्वल एज। अब अल्लाह ताला ने उनको बराबर बनाया, देखें, राइट। दे वर हैप्पी एंड हेल्दी चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स लव देम। माँ बाप के लिए तो बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, माँ बाप तो अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं। फिर क्या है, when they were big enough to go to school, only Saad was sent to school. Saira was put into household chores because Saira's parents decided not to send her school. They were living in a culture which did not allow sending the girls to school. अब ये है पॉइंट।
अब क्या है, वो पेरेंट्स बच्चों को प्यार तो करते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो साद को स्कूल भेजा और सायरा को नहीं भेजा। अब सायरा क्या करती थी, घर में मामा के साथ घर के कामों में मदद करती थी, हाउस होल्ड चोर्स, छोटे छोटे काम जैसे बच्चे आप भी यकीनन करते होंगे। अब क्या है, और उन्होंने सायरा को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उनके कल्चर में गर्ल्स को स्कूल भेजना अलाउड नहीं था। तो बेटा मैं यहाँ पर एक और बात आपको समझाना चाहती हूँ कि कोई भी बात अल्लाह के हुक्म से आगे नहीं होती। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर, राइट ना, ये हमारा यकीन है। तो वो सहाबियात को भी पढ़ाते थे, सहाबा को भी पढ़ाते थे। अब वो कहते कि मैंने तो सिर्फ आदमियों को पढ़ाना है, औरतों को पढ़ाना नहीं, तो फिर औरतों को कैसे बातों का पता चलता, राइट। इसी तरह हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास सहाबी आते थे इस्लाम की चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। तो बेटा हमें असल में ये है कि अपना फोकस दुरुस्त रखना है, हमें चीज़ों को अपने, जब किसी बात की समझना है ना, तो लुक एट हाउ आवर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड दिस, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। जो हमारे नबी ने किया हम वो करेंगे, और जिससे उन्होंने मना किया हम इंशाल्लाह उससे बाज रहेंगे। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ जी कि अब वो बच्ची जो थी सायरा, शी रेड हर ब्रदर्स बुक्स एंड वॉच्ड हिम टू डू हिज वर्क, शी वांटेड टू गो टू स्कूल लाइक हर ब्रदर। अब वो उसको देखती रहती थी और देख देख के चीज़ें सीखती रहती थी। वो भी स्कूल जाना चाहती थी, उसका दिल चाहता था मैं भी पढ़ूँ, लेकिन वो स्कूल तो नहीं जाती थी, घर में ही रहकर वो बहुत सी चीज़ें सीख गई। एक दिन क्या हुआ कि साद ने अपना वर्क इनकम्प्लीट छोड़ा और बाहर खेलने चला गया कि मैं आके काम कंप्लीट कर लूँगा। सायरा ने देखा कि उस भाई की नोटबुक खुली है, उसने बैठकर उसका काम करना शुरू कर दिया। एंड शी वाज स्मार्ट, उसने ठीक चीज़ें सीखी हुई थी, उसने पूरा काम बिल्कुल ठीक कर दिया। अब उनकी मामा जो थी वो विंडो में से देख रही थी कि सायरा तो भाई का काम कर रही है। अब जब भाई वापस आया, साद केम बैक, उसने देखा कि मेरा काम तो कंप्लीट है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ही वॉज अमेज्ड, सरप्राइज्ड, ही वॉज एस्टोनिश्ड कि हु डिड इट। तो मामा ने बताया कि आपका काम सायरा ने कंप्लीट किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि सायरा तो कितनी काबिल और ज़हीन बच्ची है, तो हमने इसको स्कूल भेजेंगे। और इस तरह से सायरा स्कूल जाने लगी। और उन्होंने क्या इससे कहा क्या कि अल्लाह सेज मैन एंड वुमेन आर इक्वल, सो दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। ये है मैसेज बेटा। अब जहाँ पर अल्लाह ताला ने मैन एंड वुमेन को अपॉर्चुनिटी दी है इल्म हासिल करने की, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमें एक्चुअली बात ये सीखने की है कि इफ़ आई एम अ बॉय what should I do and how should I do, and if I'm a girl what should I do and how should I do। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, आपके टीचर्स आपके पास हैं, आपके बड़े हैं, आपकी दादी अम्मा, नानी अम्मा, दादा अबू, नाना अबू, वो आपको चीज़ें बताते हैं। बेटा उनको गौर से सुने, उनको फॉलो करें, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए ही बात करते हैं, राइट। आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मैं आपको एक और कुरान के मैसेज के साथ, The believers, men and women are allies, औलिया of one another। ये है बात बेटा। जब कोई अच्छा काम करने की बारी आए तो you should be the first, yes I can do it। मामा की हेल्प करनी है, मामा थकी हुई, उनके पाँव दबाने, मामा मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, ठीक है। इसी तरह and they enjoin good deeds al मारूफ, जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वो उसका हिस्सा बनते हैं। वो ये नहीं देखते मैं तो लड़की हूँ मैं क्यों करूँ। and forbid the bad al munkar, जहाँ गलत काम हो रहा है उसको स्टॉप करते हैं। दे ऑब्जर्व प्रेयर्स, नमाज पढ़ते हैं। दे गिव चैरिटेबल आर्म्स, ज़कात देते हैं। एंड ओबे गॉड एंड हिज प्रॉफिट, अल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं। ये है मैन एंड वुमेन का इक्वल होना, ठीक है। आपको इस बात की समझ आई, आप इसको फॉलो करेंगे, वेरी गुड। और बेटा अगर कभी भूल जाएं तो दोबारा ये चीज़ें पढ़ें, ठीक है। हम इंसान हैं ना, चीज़ें भूल जाते हैं। हम देखते हैं अच्छा वो मेरा फ्रेंड या वो मेरी कज़न या ऐसे करें तो हम भी करें, नहीं। हमने अपने अमाल को खुद दुरुस्त रखना है, और अगर कोई किसी को समझ नहीं है तो उसको भी समझाना है, ये हमारी ड्यूटी है। और आपने इस लेक्चर को भी अपने फ्रेंड्स को, अगर कोई आपकी बात में कोई मसला हो, आपको लगे कि मेरी बात नहीं सुन रहे, तो उनको क्या मेरी टीचर ने बताया, आओ बैठ के सुनते हैं, और उनके साथ बैठ के ये लेक्चर देखना है, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब कल हम इंशाल्लाह इस लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे, इसके लेक्चर 1 से। आप इसको अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और अपना बहुत ख्याल रखें। टुमारो आई विल कम अगेन with lecture 1. Till that time, take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.